Please stop. So I hope I'm audible to everyone. I have muted everyone, so we can go through the PPT first, and then I will answer some of the questions you have in the group. And also, if you want to ask me anything else, I'll also answer those. So just give me a thumbs up in the chat if I am audible to all. Yeah. Okay. Thank you. So let's start with today's webinar. Am I audible now? Okay. Okay. So I thought there'll be a little bit of disturbance. So I was using a mic. Now is it fine? Okay. So basically, like I was saying, without a good resto or a good tooth that you can give back to the patient to chew on, there is no point of doing a good endo. So that is the whole concept of holistic dentistry, that we look at everything from a bigger point of view rather than just looking at the tooth in question. Now, the setup that I am at currently is in Kolkata. And before we start this lecture, I just want to share something here. Uh, when any real progress is made, you have to unlearn. And I think that is one of the most important points which I say in all of my lectures, that you have to unlearn a lot before you can start learning. And unlearning is more difficult than learning. So let's move ahead. Now, because it's a short lecture, we are going to go straight to the point. Now, एक रूट कैनाल के सेट में मेरा एक स्टैंडर्ड सेट है रूट कैनाल का, सबका होता है. Now, what do you need? You need a front surface mirror. Okay. You need a good front surface mirror. A front surface mirror is this. It has reflecting surface on the top and not जो वो rear surface mirror जिसमें ghost image दिखता है जो हम अपने intern and college days में use करते थे. You need a good DG16. दो investments मैं हमेशा सबको बोलती हूँ. Get a good DG16. GDC का DG16 is not good. You take a good DG16 either from Dentsply or from Hugh Freedy and take good spoon excavators. Again, either from Hugh Freedy or Dentsply. बाकी Explorer, plastic filling आपको जो रखना है आप रख सकते हो. But a good front surface mirror is a must. Uh, Now, moving ahead, a good front surface mirror, what it does for you is a good front surface mirror enables you to see better. Now, if you can see better, you can do better. Now, here I have a question for everyone. I want to ask, first and foremost, ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल होता क्यों है? इफ अ पेशेंट कम्स टू मी एंड सेज कि मेरा रूट कैनाल फेल हो रहा है, तो या फिर पेशेंट को पेन है, पेशेंट तो आके रूट कैनाल फेल नहीं बोलेगा, पेशेंट बोलेगा मुझे पेन हो रहा है, मेरा दांत टूट गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? सो रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल क्यों होता है? जस्ट लाइक अ क्विक 10 seconds, जस्ट राइट इन द चैट, व्हाई does root canal treatment fail?
Just checking the chat. What do you think? What do you think is the option? Okay, improper BMP in irrigation, poor irrigation, improper BMP, missed canals. Okay, so we have a lot of people saying improper BMP, which is correct. But one of the main reasons that happens is, जो हमारा आज का टॉपिक भी है, वो है, एक है improper BMP is absolutely right, but missed canal और leaving pulp tissue behind even in canals जो आपको मिल गए हैं. Okay, so now रूट कैनाल ना फेल होने का एक्चुअली हमको लगता है ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट है इसलिए फेल हो गया, परफोरेट किया इसलिए फेल हो गया, बट एक्चुअली वो बहुत एक छोटा पार्ट है ऑफ रूट कैनाल फेलियर. रूट कैनाल फेल होता है अगर बैक्टीरिया रह जाता है रूट कैनाल के अंदर. अब बैक्टीरिया कैसे रह सकता है? या तो आपने कैनाल मिस कर दी हो, या फिर बीएमपी प्रॉपर नहीं हुई है, आप कैनाल मिस करे हैं. एंड वन ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट रीजंस इज lack of good coronal seal, which is going to be the topic of my next webinar happening next month, is going to be how to attain a good coronal seal. Now, एक landmark study हुई थी by Dr. Martin Trope back in 2005, and they said that अगर किसी टूथ में एंडो ट्रीटमेंट, अपाइकल सील उतना अच्छा नहीं है बट कॉर्नल सील बहुत अच्छा है, रूट कैनाल विल बी सुपर सक्सेसफुल. इनफैक्ट अगर आपका कॉर्नल सील खराब है लेकिन एंडो बहुत अच्छा है, रूट कैनाल विल फेल मोर देन अ टूथ विदाउट अ गुड कॉर्नल सील. दैट मीन्स कॉर्नल सील सबसे 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 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है of root canal treatment. Today we are focusing on access openings, mainly to prevent intraradicular infections. Bacteria within the root canal हमको नहीं छोड़ना है. उसका first part is doing good access opening. Second part जो होगा वो है good coronal seal, and third part जो होगा वो है BMP. Now starting with access openings, हम लोग ना ये जो लाइन लिखी हुई है बड़े में, सक्सेसफुल आउटकम इन एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट, ये हम अपने आंसर्स में लिखते थे. Now, the problem is that I had a contention with this line because outcome endodontic treatment में मैं cleaning, shaping, disinfection, obturation तो तब करूंगी ना जब मेरी access opening अच्छी होगी, right? So the first step to canal orifice location or not having missed canals is a good access opening and having a straight line access. अब उसका मतलब क्या है? Straight line access के लिए हमको कुछ जो पॉइंट्स हैं फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ट्रस एक्सेस या एक छोटी सी एक्सेस, ये बिल्कुल मत करिए, कोई फायदा नहीं होता है इस एक्सेस का, राइट? अ ट्रस एक्सेस, दिस इज एन अल्ट्रा कंजर्वेटिव एक्सेस. बीच में ट्रस एक्सेस चली थी जो सिर्फ कैनाल के ऊपर ऊपर था और बीच में पूरा आप डेंटिन का एक ब्रिज छोड़ रहे थे. दीज विल नॉट वर्क क्योंकि यहाँ पे आप पल्प चेम्बर में छोड़ रहे हो. अगर आप चेम्बर में पल्प छोड़ रहे हो तो एंटीरियर टूथ है डिस्कलर करेगा, फेल होगा. पोस्टीरियर टूथ है तो अगेन री इन्फेक्शन होगा. सो आई एम नॉट आस्किंग कि आप एक्सेसिवली बड़ी एक्सेस कैविटी बनाओ, बट डू नॉट मेक अल्ट्रा कंजर्वेटिव एक्सेस कैविटी, स्पेशली जिसको आप देखते हो दोज रबर स्टॉपर देख के मेजर करी हुई कि इतनी छोटी सी एक्सेस कैविटी है. यू मेक अ डिसेंट साइज, मॉडरेट साइज एक्सेस कैविटी, जिससे आपका पल्प भी नहीं बचेगा और कैनाल ओरिफिस भी अच्छे से लोकेट होगा. नाउ just a second, I'll just erase these. Yeah. Now the second part of a good access cavity is this. हमें रूट कैनाल इंस्ट्रूमेंट या हमारी फाइल्स, हैंड फाइल, रोटरी फाइल कैनाल के अंदर घुसानी है. अब जो आप एक्सेस कैविटी का जो ऊपर का वॉल है, अगर आप ऐसे छोड़ देते हो दिस, इस तरह से, तो जो ये फाइल है ना, ये ऑल कैनाल वॉल्स को टच नहीं कर सकती है. इन दैट सिनेरियो यू विल नॉट बी एबल टू डू अ कंप्लीट बीएमपी. इसी को ही अगर मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके सीधा कर दूं, लाइक हियर यू कैन सी, ये जो फाइल है ये पूरी वॉल्स को अच्छे से टच करेगी एंड योर क्लीनिंग विल बी इजियर. सो गो फॉर अ स्ट्रेट लाइन एक्सेस, नॉट एकदम ऐसे फ्लेयर करके, बट स्ट्रेट. कैनाल वॉल स्ट्रेट होनी चाहिए, कन्वर्जेंट नहीं होनी चाहिए. ओके, नाउ एक्सेस ओपनिंग के बर्स. ऑलराइट, so access opening के burrs, how many of you have used that endo access burr जो कि थोड़ा सा ऐसा सा दिखता है? ये टेपर्ड फिशर और टेपर्ड फिशर के हेड पे ऐसा एक राउंड बर होता है. Just in the chat, has anybody used it?
Yes, yes. So I'm getting a few yeses. Okay, so the first thing that I want you to do tomorrow morning is take that bar and throw it away. क्योंकि वो किसी काम का नहीं है. आपके लिए इंपॉर्टेंट है दो बर्स एक्सेस ओपनिंग के. ठीक है. उनमें से जिन्होंने यूज नहीं किया है, वेरी गुड, डोंट यूज इट, इट इज नॉट टू बी यूज. आपके लिए एक्सेस ओपनिंग के लिए दो बर्स ही इंपॉर्टेंट है. एक है BR49 राउंड बर, जो सबसे छोटा राउंड बर है. मोटा राउंड बर भी फेंक दीजिए, एक्सेस ओपनिंग में नहीं हेल्प करेगा. हमें यहाँ पे एक्सपोज करना है, मेरे को पल्प में घुसना है, तो मैं एक छोटा राउंड बर यूज करूंगी, विच इज माई BR49 राउंड बर. मनी का आता है, बहुत इजीली अवेलेबल है. What is my next burr that I need? The next burr that you need is an EndoZ. राउंड बर का ना फ्रैंकली सिर्फ एक काम है, वो है अंदर जाके डिच लेना, ड्रॉप लेना, और उसके बाद सारा एक्सटेंशन एंडोजेड करता है. अब एंडोजेड का एडवांटेज क्या है? एंडोजेड का एडवांटेज है ये, इसका जो हेड है ना, वो काटता नहीं है, नॉन एंड कटिंग है. मतलब अगर हेड नहीं काटेगा तो आप परफोरेशन भी नहीं करेंगे. राइट. परफोरेशन करना एंडोजेड के साथ बहुत शिद्दत लगती है अगर आपको परफोरेट करना हो एंडोजेड के साथ. राइट. सो द बेस्ट वे टू अवॉइड परफोरेशन इज पल्पल फ्लोर पे कोई भी डायमंड बर या कोई भी ऐसा बर जिसका हेड काटता है यूज मत करिए. That means go for non-end cutting burrs. EndoZ is by Dentsply. It is definitely an expensive burr. आजकल आप अगर EndoZ डेंटल कार्ट में इवन अपने डीलर्स को भी बोलेंगे, you'll get multiple इसके जो कॉपीज हैं जो काफी चीपली अवेलेबल हैं. One of the best ones that I can suggest you is मनी ने एक recently non-end cutting burr निकाला है. So you can take those. I think that is almost 1/3 of the price of EndoZ and lasts almost as well. So you can take those also, but take a non-end cutting burr. उससे भी अगर चीप चाहिए सो ये अवेलेबल होते हैं विद सुपर एंडो एंड मल्टीपल कंपनीज. सो यू कैन टेक दोज. नाउ ये जो बर है, लाइक आई सेड, राउंड बर का सिर्फ एक काम है, ड्रॉप लेगा. उस ड्रॉप में हम एंडोजेट को इंसर्ट करेंगे एंड इंसर्ट करके हमें क्या इंश्योर करना है कि हम पल्पल फ्लोर तक पहुंचे. You have to keep the EndoZ at the pulpal floor without fail. अगर आप pulpal floor से ऊपर रखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा. Now the question that comes here is pulpal floor पे है, कैसे पता चलेगा? Right? So I am going to be addressing that concern next. एक चीज हमेशा ही याद रखनी है, एक्सेस कैविटी, दिस इज जस्ट अ स्मॉल समरी ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार. एक्सेस कैविटी की वॉल्स थोड़ी स्ट्रेट या फ्लेयर होंगी, कन्वर्जेंट मत करिए, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट नहीं जाएगा, ऑल वॉल्स को टच नहीं करेगा, बीएमपी का कोई फायदा नहीं होगा. राउंड बर पल्पल रूफ को, चेम्बर की रूफ को परफोरेट करेगा और आपको वो ब्लीडिंग पॉइंट या ड्रॉप, ब्लीडिंग पॉइंट दिखेगा या ड्रॉप फील होगा. उसके बाद जो एंडोजेड है वो पल्पल फ्लोर तक जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया है, एंड बाकी सारा एक्सेस कैविटी एंडोजेड ही बनाता है. राउंड बर का लिटरली 2 मिनट का काम है बस. उससे ज्यादा डू नॉट यूज द राउंड बर, यू विल एंड अप परफोरेटिंग. Okay. Now, before I go on to the pulpal floor wala point, there is another point that I wanted to discuss here, which is I get these questions a lot that suppose mandibular molar है, distal से या maxillary molar भी है, distal से caries है, तो अब हम क्या करें? Should we continue and make an axis connecting the caries, or should we try and make an ideal axis cavity and then connect the caries? So my answer is, केरीज ने आपको एक नेचुरल पाथ दिया है टू द पल्प. राइट. दांत एक्सपोज्ड है, कैविटी लेके पेशेंट आया है, इसीलिए तो हम रूट कैनाल कर रहे हैं. राइट. सो अगर ऐसा केस है, विच इज 90% ऑफ द रूट कैनाल्स जो हम करते हैं, तो प्लीज केरीज ड्रिवन एक्सेस करिए. अगर आप केरीज के थ्रू ड्रॉप लेते हैं ना, यू विल नॉट मिस द कैनाल्स. अगर डिस्टल में है मैक्सिलरी मोलर, एग्जाम्पल डिस्टल से है केरीज, आपने केरीज रिमूव किया एक मोटे राउंड बर से, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द कैविटी को विजुअलाइज किया, एंड देन यू टुक अ डिच और अ ड्रॉप विद द BR49 राउंड बर. आपको BR49 के बाद एंडोजेड आपने रखा एंड यू एक्सटेंडेड द एक्सेस कैविटी. ओके. नाउ दिस एक्सटेंशन ऑफ द एक्सेस कैविटी में आपको सबसे पहले डिस्टोबक्कल और पैलेटल कैनाल मिल जाएंगे. वंस आपको डिस्टोबक्कल पैलेटल मिल जाएंगे, MB1 एंड MB2 इजिली मिल जाएगा.
मैंडिबुलर मोलर में अगर हम देखें तो आपको डीबीडीएल या डिस्टल कैनाल मिल जाएगा, एंड वंस डिस्टल कैनाल मिल जाता है आपको एमबीएमएल भी मिल जाएगा. So do a caries driven axis. That is the fastest way to do the axis. Number one. Number two is आपको कैनाल मिस नहीं होगा. Right? Okay. We go ahead. We have discussed that. One second. I'm sorry. Yeah. So we have discussed that एंडोजेड जो होता है वो पल्पल फ्लोर पे रहता है. पल्पल फ्लोर के लिए how do we actually ascertain that? Now, we assume pulpal floor, if you remember Krasner and Ranko's laws जो हम पढ़ते थे कॉलेज में, pulpal floor lies at the level of CEJ, right? Lies at the level of CEJ. अगर मैं roughly gingival level को CEJ मानूं, मेजोरिटी केसेस में हिस्टोलॉजिकली हम बात नहीं कर रहे हैं, हम क्लिनिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे. अगर मैं इसको सीईजे मानूं और मैं बर की डेप्थ बाहर से मेजर कर लूं पेशेंट के बक्कल साइड से, आई प्लेस द बर एंड आई चेक कि अच्छा इतनी डेप्थ अगर एंडोजेड की अंदर जाएगी gingival floor तक तो I will be roughly at the pulpal floor. If I measure this depth and I know that this depth is almost correct, जब मैं कैविटी के अंदर दूंगी उसको it will also be fairly correct. इसका मतलब बेसिकली यही है that you can ascertain the level of pulpal floor by the gingival level on the buccal side. Okay? तो gingival level के buccal अगर मैं सीईजे मानूं, आप उसी डेप्थ पे एंडोजेड को रखिए एक्सिस कैविटी के अंदर एंड यू विल हैव एंडोजेड एट द पल्पल फ्लोर. डी रूफिंग पूरी होगी, एक्सिस कैविटी ठीक अच्छे से बनेगी, वॉल्स फ्लेयर बनेंगे एंड यू विल नॉट मिस एनी कैनाल. ओके एक बार हम ड्रॉप लेते हैं. आई हैव सीन मेनी पीपल डू दिस कि जब हम एक बार ड्रॉप लेते हैं ना, दे ट्राई एंड इंसर्ट अ 10 नंबर फाइल. ड्रॉप लेने के बाद अगर आप 10 नंबर फाइल इंसर्ट करोगे, अनदर कंफ्यूजन इज दिस, आप किसी कैनाल के अंदर ड्रॉप नहीं ले रहे हो, आप चेम्बर के अंदर ड्रॉप ले रहे हो. तो जरूरी नहीं है कि वो 10 नंबर फाइल कैनाल में जा ही जाए. सो समटाइम्स पीपल जस्ट ट्राई फीलिंग विद 10 नंबर और वो 10 नंबर कहीं जाती नहीं है एंड दे आर कंफ्यूज्ड. डोंट यूज द 10 नंबर. 10 नंबर कोई कैनाल में चांसेस आर हाई कि नहीं जाएगी. DG16 लीजिए, DG16 से लुक फॉर अ स्टिक दैट वो ड्रॉप आया है कि नहीं, वो स्टिक सेंसेशन है कि नहीं. हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि हम फ्लोर तक मतलब चेम्बर में पहुंचे हैं कि नहीं, हम और कुछ चेक नहीं कर रहे हैं. तो यूज अ DG16 एंड नॉट अ 10K फाइल. 10K फाइल इंट्रोड्यूस करिएगा आफ्टर एंडोजेड से आपने सारे कैनाल लोकेट कर लिए हैं. ओके सो द रूफ ऑफ द पल्प चेम्बर looks white in color and the floor looks black in color. जो मैंने अभी पर्पल फ्लोर का एक्सप्लेन किया था आपको, उसी के लिए आई एम शोइंग यू हाउ टू डू दैट. सो जब भी कंफ्यूजन हो एक चीज याद रखिएगा, दैट रूफ इज व्हाइटिश, फ्लोर इज डार्क. राइट? फ्लोर जो होता है, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये फ्लोर है. बीच का पोर्शन, ये एक रीआरसीटी का केस था विच केम टू मी, बीच का पोर्शन इज व्हाइट. Okay, so that is the roof of the chamber which has to be removed. This is a video, but before doing that, I wanted to talk to you about the pulpal floor, जो मैं अभी आपको explain भी करी थी. Right? Color is one point, black is the chamber floor, roof white होता है. Second, measure length of the burr against the tooth. अगर आप छोटा एक्सरे यूज कर रहे हो तो आप एक्सरे के अगेंस्ट भी कर सकते हो, बट अ मोर रिलायबल टेक्निक इज व्हाट आई टोल्ड यू. बर को ऐसे रखिए अगेंस्ट द साइड ऑफ द टूथ एंड फिर एक्सिस कैविटी जब आपको एंडोजेड इंसर्ट करना है, यही डेप्थ आपको अंदर लेके जानी है. तब आपको समझ आ जाएगा कि आप पल्पल फ्लोर पे एक्चुअली में हैं. ओके सो दिस इज how you tell that you are at the chamber floor. Endozed will be at the chamber floor because these are the most common mistakes I have seen people making. Another mistake that I have seen people making is shape of the axis cavity. Please do not focus on the shape, triangular, trapezoidal, rectangular. It makes no difference. Shape actually depend करती है कैनाल की anatomy क्या है अंदर. Okay, so I have had triangle, I have had trapezoid, I have had rectangular. It just doesn't matter. Like ये वाला जो आप राइट हैंड साइड पे पिक्चर देख रहे हो इज ऑफ एन अपर 7 जिसमें एक सी शेप है,
तो उसकी कैविटी ओब्लॉन्ग टाइप की बनी है। अंदर क्या है उस पर डिपेंड करता है, शेप में मत फोकस करिए। थ्रू केरीज ड्रॉप लीजिए, एक्सेस कैविटी क्रिएट करिए, एंड देन go ahead and do your BMP after locating all the canals. Now, here what I have is, अगर रूफ है तो आप रूफ को कैसे रिमूव करेंगे? सो दिस इज हाउ, एंडोजेट को आपने उस डेप्थ तक रखना है, राइट, लाइक यू कैन सी इन दिस वीडियो, एंड रन द एंडोजेट टिल द टाइम वो पूरा एक लेवल पे है, बीच में कोई भी वाइट नहीं है, पूरा ब्लैक आपको अंदर तक दिख रहा है। दैट इज व्हेन यू नो दैट आप चेम्बर के फ्लोर पर गए हैं। ओके, वी हैव डिस्कस द कलर, द डेप्थ ऑफ द बर, शेप हमने बात कर ली है। अब हम लोग आते हैं कि आपने ड्रॉप तो लिया है, राइट, यू कैन सी दिस, राइट, ड्रॉप तो आपने लिया, एक्सेस कैविटी जैसे मैंने बोला था एक्सटेंड कर दी, ये एक लोअर सिक्स है बाय द वे, राइट, लेकिन ऐसा दिख रहा है। एनी गेसेस बाय एनीबडी व्हाट दिस इज? क्या दिख रहा है ये? राइट, आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। क्या दिख रहा है? एनी गेसेस व्हाट इज दिस दैट वी हैव हियर? Pulp stone. Exactly right. Calcified chamber is also right. That's a pulp stone. अब अगर ये pulp stone है तो अब क्या करना है? ये स्टोन हटाना कैसे है? Any ways that you use to remove the pulp stone? I want to know from everyone, pulp stone remove कैसे करते हैं? How do you do it? Before I tell you my method. Good. Scalar tip. Good. So we have a very, very nice and advanced audience here. So you use a scalar tip. Now, पल्प स्टोन के लिए प्लीज नेवर यूज अ बर, ठीक है, चेम्बर फ्लोर पे हम बर नहीं चलाते हैं, नहीं तो परफोरेट करेगा। पल्प स्टोन अगर व्हाइटिश इन कलर है ना, रेडिश व्हाइटिश, तो इजिली आपको स्केलर भी नहीं चलाना है, पुराना एक्सप्लोरर लीजिए या स्ट्रेट प्रोब लीजिए एंड जस्ट लाइक डिग इट आउट लाइक दैट। जितना येलोइंग होगा उतना ज्यादा आपको स्टोन अडियरेंट मिलेगा। तो आप कैसे करेंगे उसको रिमूव? रिमूव करने का जो तरीका होता है दैट इज हियर। ओके, तो फर्स्ट व्हाट आई डू इज, मुझे अगर रफली ब्लीडिंग पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, तो आई नो कि कैनाल इसी पे है, पल्प स्टोन उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। यू हैव टू गो ऑन द वॉल एंड फ्लोर जंक्शन, बीच में नहीं चलाएगा, बिकॉज इवन ये स्केलर टिप भी डेंटिन को पतला करके परफोरेट कर सकती है। बिलीव मी, आई हैव डन दैट मिस्टेक। सो उसको स्केलर को हाईएस्ट स्पीड, नो वाटर, पुराना स्केलर टिप लीजिए, उसके बाद आप स्केलिंग नहीं कर पाएंगे उस स्केलर टिप से, तो डोंट इवन ट्राई दैट। उसके बाद उसको एजेस पे चलाइए, एजेस पे चलाएंगे यू विल सी पार्ट्स ऑफ द स्टोन ब्रेकिंग और लूजनिंग एंड यू कैन देन लिफ्ट देम अप। हियर आप देख रहे हो वहां पे रेड रेड स्पॉट्स और प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं, एंड द रीजन आई डोंट यूज वाटर इज विजिबिलिटी हैम्पर होती है, बिकॉज एवरीथिंग दैट आई डू इज अंडर 10x ऑफ द माइक्रोस्कोप, visibility is more important. Now, another point that I would like to add here is, once आपने मोटा मोटी कैनाल लोकेट कर लिया है ना, एक स्टिफ कॉर्नल फ्लेयर फाइल लीजिए, अच्छा स्टिफ फाइल लीजिए, आइदर SX और एनी ब्रांड दैट यू वांट टू यूज, बट स्टिफ होना चाहिए, एंड जो ओरिफिस है ना उसको साइड साइड से एनलार्ज कर लीजिए। उससे क्या होता है, जो पल्प चेम्बर के कैल्सिफाइड एक्सटेंशन होते हैं ना अंदर, वो पतला हो जाता है, सो इट बिकम्स इजी टू रिमूव। एक्सक्यूज मी। Yeah, moving ahead. Now, I'm sorry, there is a confusion. Okay, we have started with our, there is a slide here that for some reason is not displaying. Give me a second. Yeah, okay. So now we come to the important part, or the part everybody's been waiting for, is upper six axis cavities. Now, upper six axis cavities में ये question I get a lot
कि केस क्या सच में फेल हो जाएगा इफ यू डोंट लोकेट द MB2? नाउ द आंसर इज नॉट रियली, बिकॉज MB2 होती तो बहुत फ्रीक्वेंटली है, लाइक इन 70 to 80% ऑफ द केसेस यू विल फाइंड MB2, बट क्योंकि वो ज्वाइन करती है, लाइक यू कैन सी, तो इट इज, अगर वो ज्वाइन कर रही है तो चांसेस आर हाई कि आपका केस फेल नहीं होगा। कैसे पता चलेगा ज्वाइन कर रही है? अगर वो क्लोज टुगेदर होंगे तो मोस्टली ज्वाइन करती है, अगर वो फर्दर अपार्ट हैं तो अलग है। लाइक इन दिस एक्सरे यू कैन सी इट इज कंप्लीटली सेपरेट, राइट? हियर ऑल्सो दे आर क्लोज बट दे आर सेपरेट। नाउ MB2 के लिए there is a small part that I wanted to show you guys. It's just a second here. Yeah, just give me a second. Adding one picture here. Just give me a second. There's a slide here that I think is not displaying, which is an important slide. Yes. Mhm. Sorry, I think I have to share again. Sharing बंद हो गई है. So just give me a second. Yes. So this is the slide that I wanted to share with you guys. Now MB2 कहाँ होता है? ट्रेडिशनली हम पढ़ते थे MB2 होता है MB1 और पैलेटल से एक लाइन ड्रॉ करो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट? नीचे वाले जो डायग्राम में MB1 से पैलेटल, यहाँ पे पैलेटल है, लाइन ड्रॉ करो उसकी लाइन में, ठीक है? वो भी होता है बट इन माय एक्सपीरियंस इट इज अ लिटिल लेस फ्रीक्वेंट। ज्यादा टाइम आपको मिलेगा यहाँ पे, MB1 से एक सीधी लाइन पे आपको MB2 मिलती है। एंड देन दिस, दैट मीन्स आपकी एक्सिस कैविटी, अगर आप शेप पे फोकस कर रहे हो, ट्राइंगल एटसेट्रा एटसेट्रा, तो चांसेस आर यू विल मिस योर MB2। हमेशा MB1 से एक सीधी लाइन में ट्रफ करो, एटलीस्ट 5 मिलीमीटर्स डाउन। मतलब MB1 अगर यहाँ पे है, MB2 के लिए 5 मिलीमीटर तक आप ट्रफ करो, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंसेस कि वहां तक भी इट इज क्वाइट डिस्टेंट सीधी डायरेक्शन में। ऐसे पैलेटल से एक एंगल पे जाके MB2 मिलेगी, ओके? एंड मोस्ट ऑफ दीज टाइम्स जब ऐसे मिलती है, चांसेस आर हाई दैट इट इज सेपरेट। सो ऑलवेज ऑलवेज लुक फॉर MB2 MB1 से सीधी लाइन पे, एंड यू शुड गेट एन MB2 मेजोरिटी ऑफ द टाइम। MB2 को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर कंफ्यूजन है, कैल्सिफाइड है, नहीं मिल रही है, MB1 को पहले फुल प्रिपेयर कर लो, BMP रोटरी सब खत्म कर दो, उसके बाद विजुअलाइज करो MB1 से सीधा कैसे होगा, एंड उस जगह पे अल्ट्रासोनिक टिप चलाओ। अल्ट्रासोनिक टिप या स्केलर टिप बहुत काम की चीज है, पल्प स्टोन भी रिमूव करती है, MB2 भी ढूंढ के देती है, एंड इट इज एन एक्सीलेंट एक्सीलेंट थिंग टू हैव। अगर डेडिकेटेड अल्ट्रासोनिक टिप चाहिए तो एंडोडोंटिक अल्ट्रासोनिक टिप्स आती हैं, नहीं तो योर ओल्ड स्केलर टिप इज गुड इनफ। एंड वहां पे डेंटिन थोड़ा सा रिमूव करो, ट्रफिंग करो, खोदना है बेसिकली, राइट? अगर फिर भी नहीं मिलती है, EDTA, लिक्विड EDTA, नॉट द जेल, लिक्विड EDTA 17%, एक ड्रॉप डालो चेम्बर में, कॉटन या माइक्रो एप्लीकेटर जो होता है वो लेके उससे घिसना शुरू कर दो। उससे अगर आप घिसना शुरू करोगे तो डेंटिन थोड़ी सॉफ्ट होगी, DG16 10 नंबर सब बेंड होगी यहाँ पे। हमें एक स्टिफ चीज चाहिए लाइक DG16, जो कि वहां पे डेंटिन शेल्फ को थोड़ा सा पंक्चर करके घुस जाए अंदर,
सो TG16 से बार बार वो स्टिक सेंसेशन को ढूंढो। अगर स्टिक सेंसेशन मिलता है, सबसे पहला काम करो कोरोनल फ्लेयर। ओके, सबसे पहला काम करो कोरोनल फ्लेयर फाइल एंड बिलीव दैट MB2 एग्जिस्ट्स। डोंट से नहीं मिला छोड़ दिया, ट्राई अ लिटिल एंड MB2 ऑलमोस्ट हर केस में मिल जाएगा। सो दिस वाज एन केस दैट आई वांट टू शेयर विद यू। अब MB2 के लिए केस फेल होता है कि नहीं। नाउ दिस वाज अ पेशेंट, काफी कैल्सिफाइड ही था चेम्बर, पल्प स्टोन हटा हटा के सारे कैनाल्स लोकेट किए, सब किए। अब क्या हुआ दैट पेशेंट बोल रहा है मेरा पेन नहीं जा रहा है। आई वाज लाइक दिस डजंट हैपन विद मी। मुझे लगा था यहाँ पे दो जो छोटे छोटे ऐसे से आपको दिख रहे हैं, दिस एंड दिस, आई थॉट यही है MB2 यहाँ पे। मैंने तो ढूंढ लिया है और कोई दिख भी नहीं रही है। टर्न्स आउट आई वाज रॉन्ग। जब पेशेंट का पेन नहीं गया, मैंने वो EDTA वाला मेथड अप्लाई किया एंड ऑलमोस्ट 5 मिलीमीटर नीचे एक्सक्यूज मी, सॉरी, आई हैव बैड कोल्ड। 5 मिलीमीटर नीचे एंड 2 मिलीमीटर डीप, 5 मिलीमीटर ऐसे और 2 मिलीमीटर अंदर ट्रफ करके एक MB2 मिली, जो कि ये है, बिल्कुल सेपरेट। ओके, सो बिलीव द पेशेंट। अगर पेशेंट बोल रहा है पेन है, सो यूजुअली पेन होता है। पेशेंट्स को डॉक्टर्स के पास आने का शौक नहीं है। अगर वो आके बोलते हैं कि पेन है, सो पेन है। And I really believe that we should actually listen to the patient. Okay, so this is how you look for an MB2. Yeah. सो MB2 जो होता है, मैं एक नॉर्मल अल्ट्रासोनिक टिप यूज करती हूँ। एंडो अल्ट्रासोनिक टिप मैं उतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करती हूँ, अनलेस एंड अनटिल आई हैव टू ट्रफ वेरी डीप, बिकॉज अ स्केलर टिप इज वेरी फास्ट अकॉर्डिंग टू मी। MB1 से पैलेटल की लाइन में एंड MB1 से सीधा दोनों तरफ ट्रफ करना है। एंड बार बार DG16 से यू हैव टू चेक फॉर अ स्टिक, एंड ऑब्वियसली बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग वाटर हियर, तो विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए सलाइन से आपको क्लीन करते रहना है। यहाँ पे पल्प स्टोन भी है, along with the fact that I have to look for an MB2. Hence, I am using an ultrasonic scalar tip. जैसे ही मुझे MB2 मिल जाती है, the first thing that I do is I take a stiff file. Okay, I take a stiff file. I flood the canal with hypo because I like using hypo, and then I try and insert my coronal flare. Even if it goes 1 millimeter, I can see better. Okay, so that is why always I do the coronal flare first, look for the MB2 with the DG16 like I'm doing now, and then go on with my 10 number, 15 number, etc. Now, another of the axis that people ask me very frequently is upper 7. अपर 7 में MB2 होता है? यस, होता है। डिपेंड करता है अपर 7 की एनाटमी कैसी है। एक होता है अपर 7 जिसकी एनाटमी बिल्कुल 6 जैसी होती है, वहां पे बहुत फ्रीक्वेंटली MB2 होता है। एक एनाटमी होती है जो थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा राउंडेड होता है, 3 कैनाल वाला होता है, राइट? तो वहां पे चांस कम होता है MB2 होने का। लेकिन अगर जैसी एनाटमी आपको स्क्रीन पे दिख रही है वैसी है, आई वुड स्टिल लुक फॉर एन MB2, राइट? अपर 7 में जो मुश्किल होता है, आई गेट अ लॉट ऑफ पीपल टेलिंग मी कि अपर 7 जो है ना, उसमें 2 कैनाल मिलता है। दैट इज सो नॉट ट्रू। अपर 7 में 2 कैनाल मिलता है बट कम। ओके, मेजोरिटी टाइम 3 कैनाल होता है। तो प्रॉब्लम इज अपर 7 का जो DB होता है ना, वो उसका लोकेशन हमेशा डिफाइन नहीं होता है। उसका लोकेशन कहाँ होता है? अपर 7 डिस्टलिक एरियाज होता है। जो वो डिस्टल केरीज है ना, ये जो ब्लू ब्लू लाइन मैंने हैंड ड्रॉ कर रखा है, उसके जस्ट केरीज के नीचे वाली साइड पे, दिस इज योर केरीज, लिटरली केरीज के नीचे में आपको DB कैनाल मिलेगा। सो यू हैव टू लुक देयर, अदरवाइज यू विल मिस योर DB कैनाल एंड द केस विल फेल। दिस इज एन एग्जाम्पल जब वो बिल्कुल ही MB2, MB1, DB पैलेटल पूरी एनाटमी इज लाइक ऑफ एन अपर 6। तो यहाँ पे तो जनरल एक बड़ा दांत है, एनाटमी भी नॉर्मल है। बट आई गॉट री-RC वन टाइम। फेल क्यों हुआ था री-RC? ऑब्जर्वेशन तो मोटा मोटी डिसेंट है, बहुत खराब नहीं है। दैट इज बिकॉज MB और DB एक बड़ी ओपनिंग से दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, लाइक द एक्सरे यू सी हियर, राइट?
सो दिस इज माई एम बी एंड डी बी। इसके लिए क्या करना है, अगर आपका एम बी डी बी ऐसे ऐसे हो, एक बड़ी ओपनिंग मिली है अलग से नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं, जो बड़ी ओपनिंग है ना, अगर ओवल टाइप की ओपनिंग है, फाइल को प्रीकर्व करिए, एमबी जिस डायरेक्शन में रूट हो सकती है उसमें दीजिए, प्रीकर्व करिए, डीबी जिस डायरेक्शन में रूट हो सकती है उसमें दीजिए। दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड कि उसमें दो मतलब कैनाल है अलग अलग या नहीं। एंड वेरी फ्रीक्वेंटली इवन इफ देर इज अ सिंगल रूटेड अपर 7 एमबीडीबी सेपरेट होता है। With this, we come to the end of this very short lecture. Uh, I do conduct dental workshops, comprehensive dental workshops in Kolkata and in Delhi. And I do have a range of endo workshops, restorative workshops to offer. The next endo workshop that is going to take place is on 4th and 5th April and onwards in Kolkata. So if anybody is interested, do DM me. We will be going through a lot of the topics, and most of my workshops are very, very practically oriented. As you have seen, I actually talk about real life clinical scenarios, how to make our dentists' lives better, private practice lives better. And that is what I deeply focus on and what I believe. I hope you enjoyed this lecture. These are my Instagram, Facebook, and YouTube handles. Please do subscribe, follow, and ask me any questions you have. I am just going to. Somebody has MB2 canal is very important. Yes, it is very important. I never said it is not important. It is extremely important. So somebody has asked for C file 6 number. I have never found 6 number C file very useful because it's uh, very, very thin and flimsy. Usse better to I use a 15 number hand file. So for me, if I have to use a C file, I start with the 15 because I want a stiff. How to remove about pre-endo buildup. So pre-endo buildup, very honestly, मेरा personal जो ओपिनियन है वो ये है, प्री एंडो बिल्डअप आप कभी भी कर सकते हो, बट आइडियली आपको करना चाहिए एक्सेस कैविटी के जस्ट बाद। अगर टाइम कम है, देर इज अ लिटिल ट्रिक दैट आई कैन शेयर। लिक्विड डैम आता है, अनफिल्ड रेजिन या जिंजाइवल बैरियर जो ब्लीचिंग में यूज करते हो ना, उसको दे के क्योर कर दो। ओके, सो टेम्पररी प्री एंडो बिल्डअप हो जाता है, यू कैन यूज हाइपो टू इरिगेट इट एंड एवरीथिंग एंड यू विल बी गुड टू गो। And no, it is not necessary to make the apical puff at all. Ever don't aim for it. Apical puff is absolutely unnecessary. उसका ये मतलब नहीं होता है कि apical puff अगर बनेगा तो obturation अच्छा है, नहीं बनेगा तो अच्छा नहीं है। How to remove temporary in second visit? Scaler. I am not a fan of the round bar at all. बर क्यों खराब करना है temporary remove करते करते, scaler use करो ना। MB and upper molar, yes, a little bit. What you can use to get a straight line access MB में स्केलर, सिर्फ MB के ऊपर से हटाओ, डेंटिंग पूरे वॉल से हटाने की जरूरत नहीं है, MB के ऊपर से हटाओ एंड you'll be able to do it. यूज एन एंडोडोंटिक स्केलर टिप। मैं नॉर्मल स्केलर यूज कर रही हूँ, बट देर आर एंडो डेडिकेटेड स्केलर्स. आई हैव नेवर रियली बॉट अ स्केलर यूनिट स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस. मैंने कभी भी नहीं खरीदा है. आई हैव द नॉर्मल जो बिल्ट इन स्केलर होता है. स्पीड एंड टॉर्क रोटरी फाइल का आपका मैन्युफैक्चरर डिपेंडेंट है, जो मैन्युफैक्चरर बोलता है वही यूज करिए. व्हाट इज द एंडो स्केलर? सो एंडो में वुडपेकर का आई यूज. इट्स आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स E4D और E14D समथिंग लाइक दैट. वुडपेकर की है. इफ यू आस्क देम फॉर इट they will give you. Okay, so can we remove GP and sealer? Okay, so I have a good video coming. I think by tomorrow मैं YouTube पे upload कर दूंगी remove GP and sealer वाला. Have a look at that. MB2 is usually apical. Dr. Arwa is telling me. Arwa is telling me that MB2 is usually apical to the pulp chamber, non-cutting bar. It will not be possible. No, 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 that is never true. It is not usually apical, only in calcified cases. And like I said, use a scaler. बर बहुत ज्यादा काटता है, राइट? वी आर यूजिंग एट अ वेरी हाई स्पीड. स्केलर की स्पीड उसके कंपैरिजन में शायद उसका 1/10 से भी कम होगी, है ना? तो बहुत ही कम है. तो दैट इज नॉट पॉसिबल. एंडोजेट से आई हैव बीन डूइंग इट एंड यूज अ DG16. दैट्स मोर देन एनफ. एंड इफ यू फाइंड कि अपाइकल ज्यादा है, स्केलर यूज करो. डोंट एवर यूज अ बर, यू विल एंड अप परफोरेटिंग मोर. और मीजियल रूट जो होती है यूजुअली मैक्सिलरी मोलर्स की, एक ऐसे अजीब सा एक मतलब व्हाट यू कॉल इट, फ्लूटिंग रहता है.
you will perforate the root and the case will fail. So don't use a normal जो burr आता है हमारा. प्रोटेपर नाइटाई, ओके, प्रोटेपर आई एम नॉट अ फैन ऑफ नाइटाई फाइल. सबसे हैंड फाइल्स नाइटाई की यूजलेस होती हैं. ऑब्वियसली रोटरी तो सभी यूज करते हैं, बट हैंड फाइल आर रियली बैड. अगेन प्रोटेपर बहुत ही मैं कम यूज करती हूँ, ओनली इन केसेस जहाँ पे बहुत नैरो कैनाल्स है शायद. सी प्लस फाइल और प्रोटेपर का अलग यूज है. सी प्लस इज ओनली फॉर कैल्सिफाइड कैनाल, नैरो कैनाल, मेनली कैल्सिफाइड. जहां पे एकदम कैनाल नहीं मिल रहा है आपको, वहां पे थोड़ा फोर्स यूज करना है, आप इसलिए सी प्लस यूज करोगे. एंड प्रोटेपर तो आप वैसे तो किसी भी कैनाल में यूज कर सकते हैं. तो दैट आर डिफरेंट फाइल सिस्टम्स एंटायरली. How to negotiate 90-degree curvatures and lateral exits. So, for curvature negotiation, the biggest tip that I can give you is pre-curve your hand files. Pre-curve your hand files and you will have no issues in negotiating curvatures whatsoever. So pre-curve your hand files always. And mouth mirror, okay, I use relax. Zerk and all क्या बहुत अच्छे हैं, but वो इतना easily scratch हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा कष्ट होता है जब वो खराब हो जाता है. So use relax, they are decent. They are not that expensive also. Which rotary files? It depends on what you want. That's a huge question. I use a variety of rotary files. I usually prefer 4% constant taper. तो आपको जो कंपनी के रोटरी फाइल्स 4% में पसंद है, इफ यू आस्क मी, यू कैन बाय. फॉर कंपनी रिकमेंडेशंस देयर आर मेजॉरिटी जो अच्छी बड़ी कंपनीज है उनकी फाइल्स अच्छी ही होती हैं, कोई प्रॉब्लम पर से होता नहीं है. स्टार्टेक्स स्केलर, नहीं नहीं, स्टार्टेक्स को यूज करना है, बहुत महंगा स्केलर है यार. नॉर्मल स्केलर जो नॉर्मल जो आता है ना, टेप वुड पेकर का या किसका भी आता है, वो यूज करना है. आई डोंट यूज स्टार्टेक्स, आई हैव नेवर रियली यूज्ड बिकॉज मतलब पेइंग ऑलमोस्ट लाइक व्हाट 4K for a tip is too much. Spoon excavators. So spoon excavators are for variety of reasons. So the reason I keep a spoon excavator is it helps me excavate the caries. And hue freeding and dense ply का जो spoon excavator होता है, it helps me ascertain caries बची तो नहीं है. So access cavity के टाइम पे भी हमें caries तो रिमूव करनी है ना, बट caries हम छोड़ नहीं सकते, किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते. तो लास्ट में once I have done with my burr, I take my hue freedy और dense ply का spoon excavator and I scrape. तो जब मुझे समझ आता है कि स्क्रेपिंग में या तो कुछ नहीं निकल रहा है या जस्ट व्हाइट शेविंग आ रही है, दैट मीन्स इट्स स्मूथ एंड इट्स क्लियर. दैट इज व्हाई आई यूज स्पून एक्सकवेटर. MB2 canal finding difficult. I just gave the entire lecture. Please watch the recording. Endomotor best for beginners. So, uh, very honestly, decent होते हैं endomotors. Almost all. I have endomotor videos on YouTube as well. Please see, there are 2 or 3 videos that I uploaded. So that will help you to find out the endomotors. Personal favorite is NSK. It's a corded Purana type का motor, but I really like it. It lasts a very long time. Head बहुत छोटा है, light है. I love it. Like I absolutely love the NSK motor. Locate DB in maxillary molar. Like I said, DB हमेशा अगर distal caries है, एकदम distal caries के नीचे होगी. Look there for DB. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टिल दी एपेक्स. सो ये कॉन्सेप्ट ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टिल दी एपेक्स, चेंज हो गया है. रीजन बीइंग कि अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टिल दी एपेक्स देते हो, दो चीज होती है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आप एपेक्स तक दे रहे हो ना, तो कुछ होता है कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्सिल अगर स्पिल ओवर कर जाते हैं तो वो बहुत इरिटेट करते हैं पेरिपाइकल टिश्यूज को. उस टाइम पे आप जो करोगे पेशेंट पेन में रहेगा. दैट इज वन रीजन. सेकेंड इज कि जब भी हम कुछ भी, कोई भी पल्पाइटिस, लाइक आई सेड वी आर ट्रीटिंग बैक्टीरिया, वहां पे इन्फ्लेमेशन है, पीडीएल भी सराउंडिंग में इन्फ्लेम्ड है, पीडीएल में इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड है. अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड तक दे देते हो ना, वो इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड को निकालने की जगह नहीं मिलती है. राइट. So what I prefer to do is I give calcium hydroxide, I take a hand file and I agitate it and then just leave it. राइट. जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डेंटिनल वॉल पे और कैनाल में लगना था लग गया. मेजोरिटी टाइम्स मिडिल थर्ड तक जाएगा एंड लेट इट बी. दैट इज इनफ फॉर हीलिंग. ऑलराइट. ओके. एंडोजेड बर विच इज गुड. लाइक आई सेड डेंसप्लाई इज बेस्ट, बट अगर थोड़े से कम चीपर वेरिएशंस चाहिए तो मनी हैज कम आउट विद देम. डेंटल कार्ड पे बहुत कंपनीज आपको मिल जाएंगी. एंड आई जस्ट आंसर्ड हाउ टू पुट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. टिल पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, पल्पेक्टमी बहुत आते हैं. शॉर्ट शैंक, यू कैन टेक शॉर्ट शैंक बर्स.
And money has them, all companies have them, right? Caries detected in upper second molar. The same way you find MB2 in upper 6, you find in upper 7. Same. Okay. Rubber dam, always rubber dam. I am a big fan of rubber dam. I cannot comment because I've not used BioRace, and I again have a very mix and match policy with file systems. There is not one single file system कि मैं जो हमेशा use करती हूँ. Some studies show actually just cut off the sensation. If you do good BMP and irrigation, तो बैक्टीरिया नहीं बचता है. एंड जो बैक्टीरिया बचता है वो हम ऑब्जर्वेशन में पढ़ते थे ना, एंटूम द बैक्टीरिया. उनका आप खाना बंद कर दो, इरिगेशन कर दो, स्टेराइल कर दो, उनका खाना बंद हो जाएगा. ऊपर सील, कॉर्नल सील, नीचे सील, अपाइकल सील, बीच में जो बैक्टीरिया बचता है वो मर जाता है. वो बॉडी की इम्यूनिटी टेक केयर कर लेती है. लाइक आई सेड, शॉर्ट chambers you can take for any company that you like. Coronal MB canal, M-tip. I didn't understand. Dr. Vinita has asked me, coronal MB canal rotary file break हो जाता है. So usually if you have broken a file that is like 20-25, प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि बीएमपी ऑलमोस्ट हो गई होती है. अगर आपने इनिशियल में फाइल तोड़ी है एंड यू कैन नॉट एक्सेस द पल्प एंड द कैनाल, then chances of failure are high. Management of type 3 isthmus. Yeah, type 3 isthmus. Isthmus management is again with ultrasonic tips. So it is always ultrasonic. Recording, I think, should be available. I have to check for that. Woodpecker is decent. It's not bad. Like all आजकल apex locator सारे अच्छे आते हैं. Endomotor, I am a little skeptical of local endomotors, but I think they're all decent. Okay. इंट्रापल्पल एली. सो इंट्रापल्पल एली जो होता है, इंट्रापल्पल एली का जो टेक्निक है, इंट्रापल्पल एली में टेक अ स्मॉल नीडल 26 गेज की, 1 इंच वाली या 0.5 इंच वाली जो आती है, बेंड इट, इंसर्ट इनटू द चेम्बर एंड वेज इट. wedge that needle and give with a lot of pressure, right? So if you give with a lot of pressure, intrapulpal works, but if you don't give pressure, then intrapulpal doesn't work. I cut GP, not with a GP cutter. I have that obturation pen by Woodpecker. You can take any obturation pen, that is good enough. File broken at apex of root. If the file is broken at apex of root and the patient has pain, then you either have to retrieve the file or go for a surgery, right? Woodpecker rotary file is decent. Yeah, I guess so. I've not used it personally, but it should be okay. How to clean lateral exits? By irrigation and activation. So you have to activate the irrigants to clean the lateral canals, fins, apical deltas, etc. Pulp stone in middle of the canal is very difficult. Usually नहीं होता है. अगर है भी, so you can bypass with C plus files. Usually I use liquid EDTA 17%. Sealer, I am using bioceramic sealers. So any good bioceramic sealers is decent to use. You can use Ceraseal, you can use Angelus, you can use NT is also good. So there are many good sealers. Hypoaccident is very common. So it's common if you use it with pressure. I use full strength sodium hypochlorite, 5.25% always. And I have never, it's not like I've not had hypoaccidents. I've had, but that doesn't mean कि हम full strength नहीं use करेंगे. अगर आप full strength से कुछ भी कम use कर रहे हो, there's literally no point in doing a root canal. Hypo is what actually makes the RCT successful. Articaine or xylocaine depends on the situation. Normal lignocaine, hot tooth hai to articaine. I never give devitalizer. I don't favor them. Immature teeth, the only modification is MTA obturation. How to bypass files? So the way to bypass anything is to do a good flare above the ledge or the broken file, and then pre-curve and try and go beyond it. So in short, like in 2 seconds, that's how I can actually explain it to you. Okay, so it's close to 12 now. If there are no other questions, effective bypass, same. Effective bypass over retrieval is same. If you can clean the canal, it doesn't mean that retrieval is better or bypass. Bypass में अच्छा work करता है.
Pulpectomy, rotary files, take any pedophiles. I'm not an expert in that. Yes, you can. If the patient has no pain and you're not able to bypass an apical third, uh, you obturate. That's what I would do. After RCT, how to seal the canal that bacteria does not get food. Do a good irrigation, do a good obturation, do a good coronal seal. बैक्टीरिया को खाना वैसे ही मिलेगा. Okay. Uh, hmm. All right. So with this, we come to the end of the presentations. Endocrons are decent, depends on the situation. I've used them not very frequently, but yes, they work. So if you have any questions, the group is active. You can ask me in the group. Um, and I'll answer all your questions. I'm available on Instagram, on Facebook, on YouTube. You can comment, ask me, DM me, anything. Last date to register for the workshop is 25th March for the 4th and 5th April. It will be in Kolkata. So anybody is interested, please DM me via the group and I will send you all the details. And it will be a very exhaustive and comprehensive session where we cover basic to advanced endodontics in 2 days. And it is a very, very useful and practical workshop. The second lecture will be next month and you guys will be updated on the same. And thank you so much for giving your time on a Sunday morning, which can be fairly busy for everyone, I guess. Okay, and with this, I am ending this lecture and thank you so much, everyone, and see you next month.